the NEET issue in India. The Supreme Court has issued a notice to the Centre and the National Testing Agency over a petition seeking to cancel the results of the NEET UG 2024 amid allegations of a paper leak. Although the court has said that counselling for admissions can continue, the court was hearing a fresh petition in the ongoing row over the NEET UG 2024 results that claim discrepancies in scores and have alleged preferential treatment to some students. The petition asked for the scores from the May 5th exams to be cancelled. The petition also asked for a fresh exam to be held. Meanwhile, the NTA has decided that a high-powered committee will analyse the grievances of 1,600 students who have already appeared for this exam. My colleague Ashish Sinha with us on the broadcast. Ashish, what really, if there is any relief by the Supreme Court for the students at this point in time? They've asked for the centre and the NTA to submit its responses, but there's no stop on counselling or admissions on the basis of the results for this year. Is that correct? Yes, of course. You are correct. There were two petitions which was listed for hearing today itself, and Supreme Court today issued notice to NTA on the plea seeking cancellation of NEET UG 2024 exams over the allegation of the leak of question paper. However, during the hearing, the bench observed that the sanctity has been affected and we need answer. However, when the council asked for the process of admission should be stopped, then Supreme Court clearly said, let the counselling start. We are not stopping the counselling. And the Supreme Court said, we will going to take up this matter on 8th of July. That means the counselling will go on. And now it remains to be seen whether the group of other students who have filed a petition in the top court, total 5 petitions has been filed in the Supreme Court. 2 were listed for hearing today itself. 3 is remaining. So it remains to be seen whether the similar order would be passed on that 3 pending plea or not. Okay, Ashish, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there and we listen in to what some of the advocates have said after the Supreme Court hearing today. Multiple petitions court के सामने list हुए हैं. Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके basis पे कुछ petitions list हुए थे. जो आज list हुए थे उन पे notice issue हो गए हैं. But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students. Which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. They have become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे matters के पहले जो matters list हुए थे उसमें already notice issue हो चुका है. So the court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counselling process at this stage. So that. Meanwhile, my colleague has also spoken with a few people who are, of course, embroiled in this controversy. Let's quickly listen into those sound bites as well of the aspirants. हमारे साथ अलग पांडे हैं. अब जानते हैं कि सर क्या मामला था एनटीए के मामले में. आज आपने याचिका दायर की तो क्या हुआ है अंदर में? जी, याचिका तो हमने 2 दिन पहले दायर की थी. अभी ऐसा हुआ है कि हमारी जो लिस्टिंग होगी वो कल होगी, आज नहीं थी. आज वहाँ पे एक दूसरा मुद्दा चल रहा था. कोर्ट नंबर 12 में केस नंबर 25 चल रहा था. तो मैंने बैठ के भी देखा. पहली बार जीवन में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, देखा. तो वहाँ पे मैंने ये देखा, ये जो मुद्दा है ये एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले ही लिस्टेड था 1 जून से. यानी ये जो मुद्दा था इसमें एग्ज़ाम रिजल्ट के अराउंड, ग्रेस मार्क्स के अराउंड कोई बातें नहीं थी. ये एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले था और इसमें यही बात हुई थी कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के अराउंड सारी बातें थी. हम लोग का जो मुद्दा है वो पेपर लीक, ग्रेस नंबर सभी के अराउंड है. हमारा कल लिस्टिंग होगा. सो सर इज टेकिंग आवर केस. काउंसलिंग को लेकर के क्या बात हुई कि काउंसलिंग रुकने की बात हुई है क्या? कुछ ऐसा नहीं. काउंसलिंग तो अभी मैं भी बैठा था अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है उन्होंने कि आप जवाब दीजिए क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ है. तो क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या है, क्या समझ रहे हैं कि राहत देंगे कुछ?
देखिए अब एक चीज़ आज एक पॉजिटिव होप भी दिखी है एक जगह कि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा देखा है एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले का, और उन्होंने बोल दिया सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज़ कॉम्प्रोमाइज। अभी सिर्फ पेपर लीक, अभी जो पूरा जो मुद्दा निकलेगा ग्रेस नंबर का, ट्रांसपेरेंसी का, सेंटर्स के ऊपर ग्रेस नंबर बटे हैं और बहुत से सेंटर्स पे लेट हुआ है, उनको ग्रेस नंबर नहीं मिले हैं, 2018 का जजमेंट यूज़ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन एग्जाम का ऑफलाइन, तो अभी ये सारा मुद्दा बचा हुआ है। अभी सिर्फ पेपर लीक देके उन्होंने कहा येस वी फील सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज एंड दे हैव आस्क्ड रिप्लाई फ्रॉम एनटीए, इतने पे ही। तो ऑफकोर्स जब हमारा मैटर लिस्ट होगा तो और भी बातें खुलेगी और हमें उम्मीद है कि और चीज़ें होंगी। तो एक पॉजिटिव नोट ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुछ इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा नेगेटिव एस्पिरेंट्स के लिए था कि अभी काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डाला है। फिर भी मैं सारे एस्पिरेंट्स से यही अब अपील करूंगा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट रोड पे ना करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स हैव फेथ इन जस्टिस। तो आप सुन रहे थे अलख पांडे को, उन्होंने साफ कहा कि अभी लिस्टिंग अभी इनकी सुनवाई नहीं हुई है, उसके बाद जो है कुछ इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की आशंका है। कैमरामैन पवन के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद विवादों में रिजल्ट पूरा का पूरा आ गया। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, इस बार इनका क्या हाल रहा है, कैसा इन्होंने तैयारी किया था, क्या रहा, कैसी तैयारी रही और अभी जो निकला है रिजल्ट उसमें क्या लग रहा है? मेरा नाम दुल्हाद है, मैंने स्कोर कराया 621 और पिछले साल जो था कि 615 या 610 मार्क्स पर रैंक गई थी आपकी 23,000 एंड और मेरे से 621 है तो इस पर रैंक जानी चाहिए थी 18,000 टू 19,000 अराउंड जानी चाहिए थी। और इस साल क्या हुआ है, ये रैंक गई है 57,000 पे, यानी आप गैप देख सकते हैं 30,000 अराउंड, 30,000 प्लस ही है ये, 30,000 प्लस से ज़्यादा रैंक गई है। तो इसमें अगर क्या कहते हैं एनटीए कह रहा है कि हमने 15,067 को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो इतना बड़ा इन्फ्लेशन तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1563 यानी 1600 और अराउंड मान लेते हैं, तो इससे 30,000 पर्सन का कैसे हो सकता है? या तो पेपर लीक हुआ है मास लेवल पर, या फिर उन्होंने, ऐसा हो सकता है, मैं अपने उससे नहीं कह रहा, वो तो बताएंगे कि उन्होंने ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब या तो वही बता पाएंगे इस बात को, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे मांगेगा, उन्होंने मांगा भी है मेरे ख्याल से एफिडेविट के तौर पे। अब देखते हैं, अब बता रहे हैं समर वेकेशन चल रहा है, तो अब 8 जुलाई तो बहुत 1 मंथ का बहुत बड़ा होता है गैप, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी नहीं लगाई रोक, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सक्षम नाम है मेरा। काउंसलिंग अभी जब जैसे होना है तो क्या लग रहा है, सीट मिलेगा या क्या लग रहा है? डर मेरे लग को रहा है? सीट तो मिल जाएगी, बट मैं दिल्ली की एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे 671 मार्क्स हैं, लास्ट ईयर इस पे 2400 रैंक थी, तो इस साल मैं 3K to 3.5 के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी 14 के रैंक है, तो कॉलेज तो मिल जाएगा बट दिल्ली का नहीं मिलेगा। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो इनने बोले 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स इनने दिए हैं, जिसमें से 790 क्वालिफाई करें हैं। क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स, तो मतलब 600 से ऊपर तो 100 बच्चे 200 बच्चे होंगे, तो इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं रैंकिंग में। तो पेपर लीक ही हुआ है, या तो फिर इनने कुछ रिजल्ट पब्लिश करने में गड़बड़ करी है, क्योंकि 100-200 रैंक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुन रहे थे आप बच्चों को किस तरीके से जो रिजल्ट को लेकर के लोगों के मन में संशय है, बच्चों के मन में संशय है कि हमने मार्क्स अच्छे लाए लेकिन रिजल्ट उतने उस हिसाब से स्कोर नहीं दे पाए, उस हिसाब से रैंकिंग नहीं आ पाई, इस वजह से इनमें शंका है कि हमें क्या सीट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। कैमरामैन पवन के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.